हेलो व्यूअर्स, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एमपी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए पहले तो ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। हैव अ लुक प्लीज। Do you think this is fair? The T20 World Cup has been organised around one team, India, knowing when and where they're going to play at the semi-finals should they reach that stage. No other team in this tournament has been afforded this privilege. This is important, particularly because we're at the business end of the tournament and India are in the semi-finals. The official reason given is that it's for broadcast reasons. India will play at a certain time that is more friendly for their audiences. England and India face each other in the semi-finals in Guyana, which is known to be one of the most spin-friendly pitches in the tournament. Now, this is important for two reasons. Number one is that India have picked 4 frontline spinners with the knowledge that if they reach the semi-finals, they will be playing in Guyana, a spin-friendly pitch. The second reason is that their fans can book tickets to the semi-finals way in advance, and Indian support at the semi-final is going to be massive compared to England's, considering that their fans already knew when and where they're going to be playing. If you think that's the only disparity, it actually gets worse. For the first semi-final where Afghanistan face South Africa, there is a reserve day scheduled in case of bad weather. However, for the second semi-final where England face India, there is no reserve day scheduled and only an addition of 250 minutes on the day for play. The weather forecast does not look promising at all. It is scheduled to be thunderstorms and rain throughout most of the day for the second semi-final. And if there is no play, it means India, by virtue of being at the top of the table, will already book their place in to the final of the T20 World Cup without even bowling a ball. England, the defending champions, however, will have to pack their bags and head home. Let me know what your thoughts are on it, because I feel like if the shoe was on the other foot and this luxury was being afforded to teams like Australia, England, or South Africa, then things wouldn't really be the same. अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब दुनिया खुद बोल रही है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट अथॉरिटी की जो हड़ारामी है, जो बदमाशी है, वो अपने दायरा कार से, अपने सर्किल से क्रॉस करके बियॉन्ड द बॉर्डर चली गई है, बियॉन्ड द लिमिट चली गई है। और पहले तो ये छुप छुपा के काम होता था क्योंकि बात वही है कि सबसे बड़ा स्टेक जो है बीसीसीआई का है, जो कि आईसीसी को भी डील करती है आजकल, मतलब डील मतलब कंट्रोल करती है। और यही वजह है कि ये चीजें आपको सुनने को मिली और देखने को मिली। तो होने क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चीजें सामने आ रही हैं और अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि बदमाशी और मोनोपोली, अपनी मनमानी करना, अपनी मर्जी से वेन्यूज को सिलेक्ट करना, टिकटिंग करना, और अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट चल रहा है इसके अंदर बोला जा रहा है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए 2025 के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगी। अब उसके अंदर आईसीसी क्या करता है क्या नहीं करता, क्योंकि जय शाह साहब खुद आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले। होगा क्या, वक्त बताएगा। बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो चुकी हैं, लेकिन इंडिया की जो लफ्ज यूज कर रहा हूँ, हर हरामी, ये सामने आ चुकी है कि जैसा चाह करेंगे, जो मर्जी आए करेंगे। मतलब आप स्पोर्ट से इतने बड़े हो गए कि आप जो चाह रहे हैं आप कर रहे हैं। आप मतलब वो एक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बात कही जा रही थी कि हम तो नहीं आएंगे पाकिस्तान। तो किसी जर्नलिस्ट ने इंडियन मीडिया पे बैठे हुए इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से। उसने जवाब दिया, आप एक काम करेंगे, वेन्यू उठा के आप मद्रास ले जाएं, चेन्नई ले जाएं, कलकत्ता ले जाएं, क्योंकि आपने तो अपनी मनमानी करनी, चाहे होस्ट कोई भी हो। तो अगर यही बातें रही तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। और बहुत ज्यादा असर इंडियन बोर्ड का इंग्लैंड बोर्ड के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के ऊपर है। यही वजह थी कि ये तीनों बोर्ड्स आपस में एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे बोर्ड्स को साइड पे रखकर। तो वो सिलसिला चल नहीं पाया। वो 3 वीक्स कुछ इस तरह से था, बिग 3 और 3 वीक्स के हवाले से। तो ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसको इंडियन कुत्ते बिल्ली आके भौंकना शुरू कर देंगे। इंडियन मीडिया, इंडियन ऑडियंस जो देखते भी नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है, मतलब सोचने समझने की सलाहियत इतनी खराब हो गई इंडियन लोगों की। ये मैं 5 उंगली बराबर नहीं, तमाम इंडियंस को नहीं कह रहा। ये उन्हीं कुत्ते बिल्लियों के लिए जिसके लिए हमेशा मैं बोलता आया हूँ और बोलता रहूंगा कि आपको दिन की रोशनी के अंदर भी आपको रात नजर आती है, ठीक है? और रात के अंधेरे में भी आप बोलते हैं दिन हो रहा है, क्योंकि आपने किसी की बात तो माननी नहीं है। तो उसका एक लफ्ज आता है जाहिल। मैंने रखा है नाम जाहिल। क्या आप हो तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और नहीं हो तो मुझे जवाब दो इस बात का कि मैं किस हद तक सही हूँ, किस हद तक गलत। क्योंकि अनफॉलो तो लोग मुझे कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड
मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है। तो फिक्र नहीं करो, अगर आप 2 लोग हो जिनको मेरी बात पसंद नहीं है तो वहाँ पे 10 लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि जो रेशो है इस दुनिया के अंदर वो समझदार लोगों का ज्यादा है और इंडियन लोग इंटेलिजेंट है, ठीक है, समझदार है। यही वजह है कि पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो हकीकत है ना, जो चीज है। अब जो इंडिया की चीज मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडियन टीम एज अ प्लेइंग कंडीशन के भाई प्लेयर्स कैसे हैं, आउट क्लास प्लेयर्स है, नंबर 1 टीम है पूरी दुनिया की, मानने वाली बात है। अच्छा, आपको जो चीज अच्छी लगे आपके फेवर में उसको आप वाह करते हो, जो आपको बुरी लगे हालांकि वो हकीकत में भी हो, जैसे कि ये लेडी कह रही है, मैंने तो नहीं कहा ना, अब इसको भी गालियां दोगे, देते रहो। तुम्हारा मीडिया तुमको तुम्हारे दिमागों में नफरत फैला चुका है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं तो वीडियो बना के थक चुका हूँ। वो जो कार्टून जो कार्टून नेटवर्क जो चलता आ रहा है वो 3-4 लोग उठा देते हैं और वो लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, दूसरों की इंसल्ट कर रहे होते हैं और सब दूसरी टीम को अंडररेट कर रहे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। उनका मैं क्या जवाब दूं? मैं तो थक गया हूं उनके ऊपर वीडियो बना के। मेरी कोशिश कि उनको जवाब नहीं दूं, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं। हालांकि इन 2 दिनों के अंदर उनकी वीडियो आई होती है जिनको मैं अवॉइड कर रहा होता हूँ कि कहाँ तक मैं अपने आप को रोकूं। तो मैं अपने दायरेकार में रहते हुए, बदतमीजी नहीं करते हुए वही वीडियो बना रहा हूँ जो इन लोगों को इनका चेहरा दिखा पाए। अब उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि बदतमीजियां खत्म हो, मोहब्बत का जवाब भी गालियों से दे रहे हैं हिंदुस्तानी, वो उनका ज़र्फ है, उनकी तरबियत है घर की, कुछ नहीं कहूंगा, घर की तरबियत। मैं एक ही बात बार बार बोलता रहूंगा, अगर आपके पेरेंट्स आपकी पेरेंटल ट्रीटमेंट अच्छी की होती है ना तो आप इस नहज तक नहीं पहुंचे कि अबे तबे से बात करते हो, गालियों से बात करते हो, ठीक है। और एक रियलिस्टिक चीज को जो कि आपके अपोज कर रही है आपको, उसके खिलाफ फिर आप गालियां देते। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। जिनको चेहरा मैंने दिखाया है वो अपना चेहरा देखें, अपने गिरबान में झांके कि वो क्या कर रहे हैं। अब नफरत का जो बीज आपके मोदी साहब ने बोया है वो सबको काटना तो पड़ेगा। 400 सीट से लेकर 280 तक तो सिमट गई है ये सोच रखने वाले लोग, ठीक है ना, ये सोच रखने वाले। क्योंकि ये बात मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मैं एक पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट रखता हूँ, स्पोर्ट्समैन वैसे ही हूँ मैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ मैं, और लेजर्स एक्टिविटीज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। इस वजह से मैं इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर भी मोदी साहब की मेरी बहुत टाइम से निगाह है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।